Hello friends, this is CA Sunil Raj Purohit. I'll be taking paper 4 GST part for CA Inter syllabus. So before we start friends, let me give you a background about what the topic is all about. So in your paper 4 of your intermediate syllabus, there are two parts. One is your direct tax and the other one is your GST. So the topic that I'll be taking is the part 2, which is your GST related part. This part is for 40 marks and your tax consists of 60 marks. So talking about what the paper pattern will be. So of the 100 marks total paper, 30 marks would be MCQs, which will be consisting of both your income tax as well as your GST part, and remaining 70 marks would be your descriptive one. So there are in all 14 chapters which we'll be talking about in our GST portion, and there'll be around 30 to 35 lectures which we'll be recording for your GST, each somewhere around 2 hours. So let's not waste time and let's start what GST is all about. So before understanding what GST is, one should understand what do you mean by tax, because ultimately what GST is nothing but an tax. So what do you understand by the word tax? If I put this question, what would be your answer? So tax means an amount which is collected by the government, right? Correct. So tax is basically an amount which is collected by the government, but why is government collecting this amount? So the government is collecting this amount for funding public expenditure. For what? For funding their public expenditure. अब समझो, हमको रोड्स बनाने हैं, हमको डैम्स बनाने हैं, ये सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के पास. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लोगों से पैसा लेना पड़ेगा. अब लोगों से उधार पे पैसा लेंगे क्या? तो नहीं. So what they have done is, whatever the assessee or a person is earning in India, a certain part is paid to the government as taxes. What is it? Taxes. चलिए सर, तो जो पहली चीज है वो उसी के बारे में. What do you mean by taxes? So tax is a charge levied or imposed upon a taxpayer by whom? By government, to fund public expenditure. I hope everyone is clear about what taxes are. So in India, we have two types of taxes. How many types of taxes? Two types. One is your direct tax and the other one is your indirect tax. So in your intermediate paper, the 70 marks which is there, sorry, your 60 marks which is there is your direct tax, and 40 marks which is there is your indirect tax. So now I have this question. Why do I call one tax as a direct tax and the other tax as an indirect tax? What is the reason behind it? So talking about direct taxes is something where the burden is on the person who's earning the income. For example, if I earn an income of rupees, let's say 1 crore, सोचने में क्या जा रहा है? So I earn an income of rupees 1 crore per annum, right? So now I am required to pay a certain portion as tax to the government. So who is to pay the tax? The person who's earned the income, that is me, right? So this is called as direct taxes, where the burden is on the person who's earned the income. Now, what do you mean by indirect taxes? Indirect taxes means where the burden is on a person other than who's earning the income. मतलब क्या सर? देखो, मोबाइल फोन, एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप मोबाइल फोन के दुकान में जाते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, ठीक है? मोबाइल फोन की कीमत थी 50,000 और उसके ऊपर जीएसटी, उसके ऊपर टैक्स लगा 5,000, ठीक है? तो टोटल प्राइस विच यू पेड वाज हाउ मच? 55,000. अब ये जो 50,000 है वो किसके जेब में जाएगा? वो जाएगा शॉपकीपर के जेब में. और 5,000 जो है वो किसको देना पड़ेगा? वो आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो. आप जिसने मोबाइल खरीदा वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, बट you pay it to the what? Shopkeeper, and then shopkeeper will be paying it to the government. So who has ultimately borne the
tax, so it is the consumer who's borne the tax, but the payment has been made by the person who is selling it. Is this point clear? So in this case, the consumer is paying tax, but he is not directly paying to the government, but he is indirectly paying it to the government by giving it to the shopkeeper, and then the shopkeeper paying it to the government. I hope the difference between direct tax and indirect tax is clear. Wherein the person who's earned the income is going and paying tax, it is called as direct income. शॉपकीपर ने जो पैसे कमाए उसके ऊपर जो वो टैक्स भरेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स. शॉपकीपर ने सामान बेचा, सामान की कीमत 50,000, उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया उसने 5,000. अब ये किससे कलेक्ट किया? कंज्यूमर से. एंड पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है, बट गवर्नमेंट को कंज्यूमर के बिहाफ पे शॉपकीपर दे के आएगा. दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स. चलिए सर, let us understand what are the types of what are the examples of direct and indirect. So example for direct taxes is your income tax, and in case of indirect taxes there are a lot of examples such as your VAT, service tax, excise duty and GST. All these are examples of indirect tax. Now what happens over here, there is a distinguish which says nature of tax. So direct taxes are said to be progressive in nature. क्या बोला है? Direct taxes are said to be progressive in nature, whereas indirect taxes are said to be regressive in nature. क्या बोल दिया है? Indirect taxes को regressive. चलिए तो पहले तो हम इन शब्दों का मतलब समझते हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब तरक्की करने वाला, which means प्रोग्रेसिव मीन्स अगर ये टैक्स है तो वो अच्छा है, whereas रिग्रेसिव का मतलब है ये टैक्स अच्छा नहीं है. सर ऐसा कैसे हो सकता है? टैक्स अच्छा बुरा कैसे होगा? चलिए सर समझने की कोशिश करते हैं. एक को हम प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं, दूसरे को रिग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. देखिए हमारे पास, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास मिस्टर सुनील है और हमारे पास मिस्टर अंबानी है. ठीक है, सुनील की इनकम है लेट्स से 5 लाख रुपीस एंड अंबानी जी की इनकम है समझते हैं 50 करोड़ रुपीस. ठीक है, अब टैक्स रेट हम मान लेते हैं कि टैक्स रेट इनकम टैक्स का है 10%. अब मुझे बताइए सुनील कितना टैक्स पे करेगा और अंबानी जी कितना टैक्स पे करेंगे? तो सुनील विल पे अ टैक्स ऑफ रुपीज 5 लाख का 10% विल बी हाउ मच? विल बी 50,000. whereas अंबानी जी विल बी पेइंग 10% of 50 crore, that will come to 5 crore rupees. So if you see, your direct taxes is directly related to the income. More the income, more will be the collection of tax to the government. So if the economy is growing, people will have more and more income in their hand. More and more income will lead to more and more taxes to the government. Therefore, it is said to be progressive in nature. Whereas your indirect taxes is said to be regressive. इसको regressive क्यों बोल रहा हूँ? सर regressive बोलने के पीछे रीजन ये है. So I hope आपको ये एग्जाम्पल दिखा नहीं, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. सो आई होप नाउ दिस इज विजुअल. सो अब ये एग्जाम्पल क्लियर है तो एक और बात करते हैं. चलिए सर हमको ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहे हो, बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव क्यों नहीं? चलिए समझते हैं. एग्जाम्पल सेम ही. हमारे पास मिस्टर सुनील है, मिस्टर अंबानी जी हैं. सुनील और अंबानी जी दोनों को एक ही फोन पसंद है. ठीक है, लेट्स टेक दोनों को लेना कौन सा है? आईफोन 11 लेना है, जिसका कॉस्ट कितना है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 1 लाख रुपया कॉस्ट है. सो भले ही सुनील ले भले ही अंबानी जी ले, कॉस्ट कितना लगना है? 1 लाख रुपए ही लगना है, राइट? अब इसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? तो जीएसटी का रेट समझ लेते हैं 10%. ठीक है, कितना है? 10% जीएसटी का रेट है. तो अब मेरे को बताइए सुनील और अंबानी जी दोनों टैक्स कितना पे करेंगे? तो बोथ विल बी पेइंग अ टैक्स ऑफ रुपीज 10,000. तो दोनों कितना टैक्स भर रहे हैं? दोनों सेम अमाउंट का टैक्स भर. बट क्या इन दोनों की इनकम सेम है?
क्या इन दोनों की इनकम सेम है? सो द आंसर इज इनकम इज नॉट सेम, क्योंकि हमने पहले ही देखा था एक की इनकम 5 लाख रुपए थी, वहीं पे दूसरे की इनकम 5 करोड़ रुपया थी। तो in case of indirect taxes, it will not consider your paying capacity. It is irrespective of what your paying capacity is. आपने जो कमोडिटी खरीदी, भले ही आप गरीब हो, भले ही आप अमीर हो, आप भले ही मिडिल क्लास हो, भले ही आप टॉप क्लास को बिलोंग करते हो, वट एवर योर अर्निंग कैपेसिटी इज, द टैक्स विच यू विल बी पेइंग विल बी सेम. सो this is said to be regressive because here it is disregarding the income earning capacity of one person. So इसलिए indirect taxes को बोला जाता है regressive. I hope this point is clear. So हमारे पास दो टाइप के taxes है, one is progressive, one is regressive. I hope कौन सा वाला progressive, कौन सा वाला regressive is clear. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्टिंग्विश के बीच. सो अब हमारे पास तो टैक्सेस कौन लगाता है? तो हमारे पास टैक्सेस लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डायरेक्टली टैक्स लगाता है? नहीं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्या बोलते हो आप? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कैन एनीवन टेल मी हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंटली? यस, निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो now, so the finance ministry is headed by the finance minister of the central government. अब इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे दो डिपार्टमेंट है. वन इज योर डायरेक्ट टैक्स वाला डिपार्टमेंट, द अदर वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट. सो द बोर्ड विच लुक्स आफ्टर योर डायरेक्ट टैक्सेस इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. कौन सा बोर्ड ध्यान रखता है ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी. सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड कौन सा है? सो इट इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी. एक है सीबीडीटी एंड दूसरा है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. पहले इसका नाम हुआ करता था सीबीईसी, उसको उन्होंने चेंज करके कर दिया सीबीआईसी. सीबीईसी का मतलब होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसको अब उन्होंने चेंज करके कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. आई होप द डिस्टिंग्विश इज क्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस इज क्लियर. एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. सो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस? टैक्सेस मीन्स एन कलेक्शन और एन टैक्स विच इज एन अमाउंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर टू फंड व्हाट? टू फंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको बोलेंगे टैक्स. ये कलेक्ट कौन करेगा? कोई भी कलेक्ट कर सकता है क्या? नहीं. ये कलेक्ट करने का पावर है किसके पास? गवर्नमेंट के पास. उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो डायरेक्ट टैक्सेस इज योर इनकम टैक्स एंड योर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द जीएसटी दैट विल बी लर्निंग अहेड. बट दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है? एक जो पर्सन से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. दूसरा जो इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स. फिर कौन उसके रिलेटेड लॉस का ध्यान रखेगा? तो देयर इज सीबीडीटी विल बी लुकिंग आफ्टर द डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीआईसी विल बी लुकिंग आफ्टर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. फिर नेचर कैसा है टैक्स का? तो एक प्रोग्रेसिव है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, एंड दूसरा वाला रेग्रेसिव है बिकॉज इट इज डिसरिगार्डिंग योर इनकम कैपेसिटी. चलिए सर, अब अगर ये चीजें क्लियर हुई है तो हम एक्चुअल टॉपिक जो हमारा जीएसटी है उसके और बढ़ते हैं. चलिए सर, सो बिफोर वी स्टार्ट जीएसटी लेट मी गिव यू एन ब्रीफ के जीएसटी है क्या, उसको लाने के पीछे रीजन क्या है और उसको कब लाया गया और कैसे लाया गया. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि जीएसटी लाने से पहले क्या इंडिया में कोई टैक्स होता नहीं था? क्या कोई इनडायरेक्ट टैक्स प्रिवेल करता ही नहीं था जीएसटी से पहले? सो द आंसर इज जीएसटी से पहले भी टैक्सेस होते थे, जीएसटी के बाद भी देयर आर मल्टीपल टैक्सेस विच आर स्टिल एग्जिस्टिंग एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. चलिए, अब डायरेक्ट टैक्स की कहानी मैं छोड़ दे रहा हूँ. डायरेक्ट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट पार्ट विच इज ऑफ 60 मार्क्स. हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे. हम इसके बाद जितनी भी बातें करेंगे विल ऑल बी रिलेटेड टू योर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दैट टू ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू जीएसटी. चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में देयर वर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी ऑल्सो.
तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे बिफोर जीएसटी. सो बिफोर जीएसटी वी हैड वैट, that is your value added tax. We had CST, which is your central sales tax. उसके अलावा सर्विस टैक्स हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी. ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे बिफोर. इसके अलावा भी और भी टैक्सेस है, बट पहले प्राइमा फेशियल वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट दीज 4 टैक्सेस. चलिए सर, तो सर अब ये टैक्सेस नहीं है, तो अब विथ the GST implementation, all these taxes which were there are no more existing for except a few exceptions. चलिए सर, वो एक्सेप्शन क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे. बट अब ये सारे जो टैक्सेस पहले होते थे, दे हैव नाउ सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी. सर सबस्यूम मतलब ये अब जीएसटी के अंदर समा गए. मतलब क्या है समझते हैं. सो VAT was a tax. Before GST, what used to happen is, we'll talk about goods. So जब भी कभी आप कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. क्या पे करनी पड़ती थी? एक्साइज ड्यूटी. फिर आप जब वो गुड्स को बेचते थे, जब आप वो गुड्स को बेचते थे तो आपको पे करना पड़ता था वैट, अगर आप विद इन द स्टेट बेच रहे हो, और अगर आप आउटसाइड दी स्टेट बेच रहे हो तो आपको पे करना पड़ता था सेंट्रल सेल्स टैक्स. चलिए अब समझते हैं क्या क्या इंप्लीकेशंस होते थे. सो इन केस ऑफ गुड्स, एक्साइज ड्यूटी वाज टू बी पेड व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, एंड ये जाता था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. किसको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को. हमारे पास 2 टाइप की सरकार होती है. वन इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, दी अदर वन इज योर स्टेट गवर्नमेंट. दोनों को अपने अपने रेवेन्यूज चाहिए ताकि वो अपने अपने लेवल पे एक्सपेंडिचर कर सके. जैसे स्टेट लेवल पे अगर मुझे कुछ एक्सपेंडिचर्स करने हैं तो व्हाट आई नीड इज फंड्स. फंड्स विल बी नीडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ऑन द सेम लाइन, even the central government needs funds to make the public expenditures. तो उनके अलग अलग टैक्सेस थे जो अलग अलग अथॉरिटीज कलेक्ट करती थी. जैसे हमारे पास एक्साइज था विच वॉज कलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट वॉज कलेक्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट, CST was and collected by central government but was a revenue of the स्टेट गवर्नमेंट. रेवेन्यू किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का. सर ये नहीं समझ, मैं पूरा का पूरा आपको क्लियरली समझा दूंगा, चिंता मत करो. तो जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो मैन्युफैक्चर पे आपको क्या करना पड़ता था? एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता. आप कोई भी गुड्स बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लीवाइस. तो लीवाइस क्या करता है? कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है, जीन्स मैन्युफैक्चर करता है. नाउ ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीन्स, Levi's will have to pay excise duty. जैसे ही उन्होंने जीन्स बना दी, what they'll have to do is they'll have to pay excise duty. अब ये एक्साइज ड्यूटी किसको पे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. और एक्साइज ड्यूटी पे हो गया मैन्युफैक्चरिंग पे. अब ये मैन्युफैक्चर करके अपने को अपने गोडाउन में रखना है क्या? नहीं, हमको क्या करना है? इसको आगे बेचना है. तो जब आप इस गुड्स को बेच दोगे, तो जब अब लीवाइस ने मैन्युफैक्चर करके बेच दिया, पहले वो समझो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से आगे कंज्यूमर को. तो ये जो चेन है, अब इस चेन में जैसे जैसे गुड्स बेचे जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे वैट विच इज योर वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको और एक नाम है विच इज योर सेल्स टैक्स ऑल्सो बोल के भी बुलाया जाता है. तो सो एक्साइज ड्यूटी वाज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वैसे ही जैसे ही गुड्स स्टेट में बिकते थे तो आप क्या पे करते थे? वैट पे करते थे, विच वाज गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर विद इन द स्टेट हो रहा था. जैसे अब लीवाइस वाले ने गुड्स बेच दिए, लीवाइस का जो फैक्ट्री है दैट इज इन मुंबई, एंड उन्होंने गुड्स बेच दिए समझो पुणे में, सो इट इज विद इन द सेम स्टेट. तो वो क्या पे करते थे? दे वर पेइंग वैट, दैट वाज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स ऑल्सो. अब अगर ये आउटसाइड दी स्टेट बेचते, समझो उनका यूनिट कहाँ पे है? उनका यूनिट है
Mumbai mein and they are selling it to Karnataka, so in that case they will be paying central sales tax, although it was a tax which was levied by central government but was a revenue of the state government. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता था कि सर ये रेवेन्यू जाएगा किसको। अब यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, एक है आपका कर्नाटका स्टेट, दूसरा है महाराष्ट्र स्टेट। तो हु विल द रेवेन्यू बी गोइंग टू? तो एक तो है महाराष्ट्र के पास जाना चाहिए, दूसरा व्यू होगा कि कर्नाटका के पास जाना चाहिए। सो इन अर्लियर रिजीम इट वॉज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द गुड्स वर ओरिजिनिंग। तो हमारे यहाँ पे ओरिजिनेटिंग स्टेट कौन सा था? तो ओरिजिनेटिंग स्टेट वॉज योर विच? इट वॉज योर महाराष्ट्र। तो वो रेवेन्यू किसका होता था? ओरिजिनेटिंग स्टेट का, जहां से गुड्स बेचे जा रहे हैं। चलिए सर, विद दिस वी हैव अंडरस्टूड कि कौन कौन से टैक्सेस लेवी होते थे। तो अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे। तो एक्साइज के लिए हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वैट के लिए हमको अगर किसी कंपनी का या किसी टैक्स पेयर के अगर मल्टीपल स्टेट्स में उसके ऑपरेशंस है तो उसको हर एक वो स्टेट में उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट इज ही विल हैव टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अगर कोई है जिसके मल्टीपल स्टेट में, तो उसको वो स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम। फिर दूसरा इशू आता था कि हर एक स्टेट में टैक्स रेट्स अलग। अब कोई स्टेट का वैट रेट होता था 5%, तो किसी और स्टेट का रेट होगा 12%। सो देयर वाज अ डिस्पैरिटी इन रेट्स एज वेल, बिकॉज ऑफ विच अ कमोडिटी which was available at a certain price in a state, there was a other state which could be selling it at a higher rate or a lower rate depending on the tax rate which was available over there. So even though we were one country, there were multiple rates depending on the states. So इसकी वजह से क्या हो जा रहा था? there was a lot of disparity in the market. So कोई चीज कहीं पे सस्ती मिलती थी तो कोई कहीं पे महंगी, डिपेंडिंग ऑन दी रेट्स विच वर प्रिवेलिंग इन ओवर देयर। सो टू ओवरकम दिस व्हाट दे हैड डन इज दे हैड इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। अब ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या ला दिया? जीएसटी। जीएसटी का बेनिफिट क्या है? सो भले ही आप मैन्युफैक्चरर हो, भले ही आप ट्रेडर हो, आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। पहले अगर आप मैन्युफैक्चरर होते तो आपको एक्साइज का रजिस्ट्रेशन अलग, आपको सेलिंग के लिए वैट का रजिस्ट्रेशन अलग। ये सब अब करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ओनली वन रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर जीएसटी। एंड जीएसटी में देयर विल नेवर बी अ सिनेरियो ऑफ मल्टीपल रेट्स, बिकॉज जीएसटी में रेट्स आर फिक्स्ड। एक चीज जो महाराष्ट्र में 100 रुपया और 10 रुपया जीएसटी, दैट इज 110 पे मिल रही है, तो वही चीज भले ही आप महाराष्ट्र में खरीदो या गुजरात में खरीदो, उसका रेट सेम रहेगा। देयर बी नो डिस्पैरिटी, विच मीन्स नाउ एंटायर इंडिया इज अ सिंगल मार्केट। समझ में आ रहा है? चलिए सर, उसके अलावा सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमने क्या बात कर ली कि हमको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। तो एक प्रॉब्लम था मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, दूसरा हर एक गवर्नमेंट के लॉज अलग, तो मुझे उस लॉ को कंप्लाई करने के लिए वहां पे सेपरेट सीएस को अपॉइंट करना पड़ता था ताकि वो लोग कंप्लायंस कर सके। नाउ इन जीएसटी ऑल दी स्टेट्स विल हैव सेम कंप्लायंस प्रोसीजर्स, इसलिए मेरे को कंप्लायंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सीए ही सारे कंप्लायंसेस कर पाएगा। सो विथ जीएसटी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। So with implementation of GST, now all these problems which are there have been overcome. समझ में आया? दिक्कत अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर जीएसटी लाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि पहले भी टैक्सेस तो पहले भी होते थे, तो फिर जीएसटी लाके मतलब क्या निकला। चलिए सर, अब सर हमको एक चीज समझ में आई कि सर अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग वैट लॉस थे एंड अलग अलग क्या बोलते हो आप रेट्स होते थे, तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया था। बट हमको एक चीज क्लियर नहीं हो रही है सर, जीएसटी जो है आपने हमको बताया कि एक्साइज जो होता था वो किसका रेवेन्यू था? दैट वाज द रेवेन्यू ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फिर आपने बताया कि वैट जो होता था दैट वाज अ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दोनों को अपने रेवेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए। सर अब ये जो जीएसटी आपने लाया है जिसको आप बोलते हो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब ये किसका रेवेन्यू होगा, इसका रेवेन्यू किसको जाएगा? अ वेरी गुड क्वेश्चन। जीएसटी जो होगा इसका रेवेन्यू डिपेंड करता है किस टाइप का वो टैक्स, किस टाइप का वो ट्रांजैक्शन है। दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, और एक होगा आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, अब जो विद इन द स्टेट होते हैं उनको हम जीएसटी में एक नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और आउटसाइड दी स्टेट जो होते हैं उनको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वन इज विद इन दी स्टेट, उसको बोलोगे इंट्रा, एंड विच इज आउटसाइड दी स्टेट उसको बोलोगे इंटर स्टेट। ओके सर, अगर जीएसटी विद इन दी स्टेट लग रहा है, विद इन दी स्टेट वाला ट्रांजैक्शन है, तो हम दो टाइप के जीएसटी चार्ज करते हैं, एक होता है सेंट्रल का पोर्शन और दूसरा होता है स्टेट का पोर्शन। So there will be two taxes which will be charged. One is your CGST, the other one is SGST. For example, किसी कमोडिटी पे समझो रेट है 10%, तो समझो हमने 100 रुपए की जीन्स बेची, ठीक है, और विद इन दी स्टेट बेची, तो उस पर क्या लगेगा? समझो रेट है टैक्स का 10%, तो क्या क्या लगेगा? 10% में से 5 विल बी योर CGST एंड 5 विल बी योर SGST, ऐसे करके टोटल उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 110। Is this clear? So if it is within the state, there will be two GSTs which will be charged. One is your CGST, the other one is your SGST. अगर इंटर है तो क्या होगा? तो ना C लगेगा ना S लगेगा, तब लगेगा IGST। क्या लगेगा? IGST। अब वही एग्जाम्पल, 100 रुपए की जीन्स थी जो बेची गई, अब उसके ऊपर IGST लगाया जाएगा एट 10%, विच विल बी योर 110 बन जाएगा उसका टोटल प्राइस। सो भले ही वो इंटर हो इंट्रा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेट विल बी द सेम, ओनली दी पोर्शन चेंजेस। अगर विद इन द सेम स्टेट है तो हाफ पोर्शन विल बी गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दी हाफ पोर्शन विल बी गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ऐसा इसमें भी तो कर सकते थे, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है उसमें आईजीएसटी क्यों ला रहे हो? और आईजीएसटी का मतलब क्या है? आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर आईजीएसटी लाने के पीछे लॉजिक ये है कि देखो, सेंटर का पोर्शन तो हमारे पास एक ही सेंटर गवर्नमेंट होती है इसलिए उसको देना आसान है, बट एसजीएसटी में प्रॉब्लम ये होगा बिकॉज when there is an interstate transaction there will be two states which will be involved. One is the state where the goods are originating from and the other will be a destination state. Now in this case there will be a problem. So what they have done is, rather the government will be collecting, the central government will be collecting the entire tax in name of IGST, and then a certain portion of that will be apportioned, a certain portion of this tax will be apportioned to the state government. अब state government कौन सा? तो the state government which where the goods have been destinated. मतलब अगर मुंबई से goods जा रहे हैं to सूरत, so which tax, which government will be getting the revenue? So one will be going to the state government, the other revenue will be going to the Gujarat government. It is different from your VAT regime, जहाँ पे टैक्स किसका होता था? ओरिजिनेटिंग स्टेट का। वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट प्रिंसिपल। नाउ इन जीएसटी देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल विच विल बी प्रिवेलिंग, दैट इज योर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। इसका भी क्या लॉजिक है हम सब समझने वाले। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि हम आगे इसको आसानी से समझ सकें। चलिए सर, आई होप कौन कौन से टाइप्स के टैक्सेस होते हैं वो समझ में आए हैं आप लोगों को। चलिए, विद दिस गुड्स वाला पार्ट तो क्लियर है। अब बात करते हैं सर्विसेज वाली। पुराने रिजीम में, प्री जीएसटी रिजीम, सर्विसेज का टैक्सेशन कैसे होता था? तो सर्विसेज के केस में देयर वाज दिस टैक्स व्हिच वाज लेविड, व्हिच वाज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। एक टैक्स कलेक्ट होता था जिसका नाम होता था सर्विस टैक्स।
और ये रेवेन्यू होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब सर तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें तो टैक्स भी एक ही गवर्नमेंट का था और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो रेट भी सेम होंगे। तो फिर सर्विसेज के लिए एक टैक्स लाने की जरूरत क्या पड़ी, प्रॉब्लम क्या थी? बिकॉज इन अर्लियर रेजिम गुड्स का जो टैक्सेशन होता था, गुड्स के ऊपर क्या लगता था, वैट लगता था, एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा सर्विस टैक्स। नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज गुड्स का रेवेन्यू यूज्ड टू गो टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विसेज का रेवेन्यू यूज्ड टू गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो देयर वाज एन कंफ्यूजन स्टेटिंग दैट एक ट्रांजैक्शन को हम गुड्स का ट्रांजैक्शन माने कि सर्विसेज का ट्रांजैक्शन माने। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के केस में, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, राइट? रेस्टोरेंट के केस में व्हाट हैपेंस इज यू गेट फूड एंड यू गेट दी सर्विसेज ऑफ दैट रेस्टोरेंट। आप गए, एसी में बैठे, खाना खाए, तो यू आर गेटिंग टू थिंग्स, वन इज द सर्विस ऑफ दैट रेस्टोरेंट एंड द अदर वन इज दैट फूड। सो फूड पोर्शन बिकम्स व्हाट, गुड्स का पोर्शन, एंड जो सर्विसेज मिली आपको रेस्टोरेंट की, दैट इज सर्विसेज। नाउ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी क्या कि ये जो रेस्टोरेंट वाला ये सर्विस दे रहा है, एंड स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं नहीं ये तो गुड्स है। द कॉन्फ्लिक्ट वाज अराइजिंग बिकॉज द रेवेन्यू वाज अंडर अ क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसको गुड्स मान लिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, और इसको अगर हम सर्विस मान लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा था, स्टेट भी टैक्स कलेक्ट कर रहा था एंड सेंटर भी टैक्स कलेक्ट कर रहा था, एंड इस पे डबल टैक्सेशन हो जा रहा था। इसलिए टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पे अब ये कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गया, भले ही गुड्स हो भले ही सर्विस हो, टैक्स दोनों को मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस वाज द रीजन फॉर subsuming service tax into GST। चलिए सर, अब हमको अगर थोड़ा बहुत ब्रीफ पता चल गया है तो हम आगे की बात करते हैं कि चलिए पहले तो हम बात करते हैं जेनेसिस की, कि जीएसटी लाया कैसे गया। जेनेसिस इज बेसिकली द हिस्ट्री अबाउट जीएसटी, कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे किया गया। सो बेसिकली बिफोर GST was introduced in India is not the only country where GST has been introduced. इससे पहले भी there were many countries and इसके बाद भी there are many countries who have adopted GST. So the first country which has adopted GST was France. France was the first country to adopt GST. उन्होंने adopt किया था in 1954. कब किया? 1954 में GST adopt किया। इंडिया वॉज दी 160th कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी। हमने जीएसटी कब अडॉप्ट किया? हमने जीएसटी अडॉप्ट किया इन 2017 1 जुलाई को, राइट? अब वन फाइन डे हम उठे और जीएसटी ला दिया, ऐसा नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच वाज पुट इनटू द पिक्चर। तो अब ये एफर्ट्स क्या थे वो समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे यहाँ पे पहली बार जीएसटी की बात होने पे हमने एक टास्क फोर्स बिठाया विच वॉज डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स, जिन्होंने रिकमेंड किया कि जीएसटी को लाना चाहिए इन इंडिया ऑन 16 जुलाई 2004। तो 2004 से हमारा चालू है कि हमने जीएसटी लाना चाहिए। सो फर्स्ट टाइम व्हेन जीएसटी वाज एवर टॉक्ड अबाउट वाज 2002, जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पहली बार जीएसटी को लाने की बात की थी। उसके बाद टास्क फोर्स बिठाया गया, केलकर टास्क फोर्स बिठाया गया इन 2004, और उन्होंने स्टडी किया वेदर द इंडियन मार्केट इज सूटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी और नॉट। फिर आफ्टर दैट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। हमारे यहाँ पे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना पड़ा। इसका रीजन क्या था वो भी बात करेंगे, बट बिफोर पासिंग जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, एंड देन CGST, SGST acts were passed, and finally GST was implemented on 1st July 2017 in states other than Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir mein it was implemented on 8th of July 2017. The reason being, before this 370 ka article which was there, so before this Jammu and Kashmir had a special status. तो कोई भी लॉ
जीएसटी का कोई भी हमको अगर लॉ लाना है तो हमको पहले उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अलग है वहां पे उसको पास करवाना पड़ेगा एंड देन वी हैड टू इम्प्लीमेंट अ लॉ ओवर देयर। तो इसलिए वहां पे थोड़ा टाइम लगा लॉ लाने को। बिफोर दैट in the entire India on 1st July the law was made applicable. So this is basically the genesis कि GST लाया कैसे गया। Now talking about what all taxes were subsumed, so हम बात करते हैं दो पार्ट्स में, एक थे जो सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस थे और दूसरे स्टेट लेवल पे जो टैक्सेस थे वो कैसे सबस्यूम हुए। So now in GST there are these taxes in the yellow bucket which are at central level and blue bucket which is for your state level. So कुछ taxes state ने subsume करे और कुछ center ने for the implementation of GST। तो बात करते हैं वो कौन कौन से taxes है। So at the central level central excise duty जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, फिर कस्टम ड्यूटी नहीं गया है, कस्टम ड्यूटी में सीवीडी एंड एसएडी, माइंड यू कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, बोलिए सर कस्टम ड्यूटी कब लगता है? कस्टम ड्यूटी तब पे करना पड़ता है जब आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो इनटू इंडिया। तो जब भी आज भी अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटीज आज भी पे करनी पड़ेगी। सबस्यूम क्या हुआ है? तो सबस्यूम हुआ है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इसका मतलब है, समझते हैं चलिए। तो देखो कोई भी गुड्स आप जब इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर बिफोर जीएसटी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था, उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो इतने टैक्सेस लगते थे अगर आप इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट प्री जीएसटी अगर आप इंपोर्ट करते थे तो दीज आर दी टैक्सेस विच वर टू बी पेड इन केस ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ गुड्स आपको क्या क्या पे करना पड़ता था? बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। अब ये क्या होता था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी वाज नथिंग बट एक्साइज ड्यूटी। मतलब आप गुड्स बाहर से ला रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंडियन मार्केट को डीमोटिवेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर समझो इंडियन मार्केट में कोई गुड्स बनते हैं और समझो वो मिल रहे हैं 500 रुपए में, बट यही चीज अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करके लाता हूं तो वो शायद मुझे सस्ती मिल रही है, समझो मेरे को वो 200 रुपए में ही मिल रही है। तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज द इंडियन मार्केट इज गेटिंग डीमोटिवेटेड, तो वो गुड्स बनाएंगे ही नहीं। तो अब इसको कंपेरेबल लेवल पे लाने के लिए व्हाट दे वर डूइंग इज, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा था तो उसको मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी भी पे करना पड़ रहा था, बट जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं है बिकॉज वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है। So in that case, to make it at par, what they were doing is they were levying a tax called as countervailing duty। भले ही आपने उसको बाहर से लाया है, बट अगर मैन्युफैक्चर होता है तो काम पे क्या लगना चाहिए? एक्साइज ड्यूटी। तो वैसे ही वो जो आपने इंपोर्ट किया उसके ऊपर भी सीवीडी बोल के एक टैक्स लगा दिया है। दिस वॉज सीवीडी। नाउ टॉकिंग अबाउट एसएडी। अब ये मैन्युफैक्चर पे क्या लगता था? एक्साइज। वैसे ही जब आप इंडिया में गुड्स बेचते हो तो क्या लगता है? क्या लगता है? वैट। तो दिस स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वाज नथिंग बट अ काउंटरवेलिंग ड्यूटी फॉर वैट। भले ही आपने बाहर से गुड्स लेके आ गए हो इनटू इंडिया, बट व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू स्टिल पे वैट टू मेक इट कंपेरेबल विद द इंडियन मार्केट, ताकि इंडियन मार्केट डीमोटिवेट ना हो एंड वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते रहे। सो दीज वर दी टैक्सेस विच वर टू बी पेड। पोस्ट जीएसटी क्या हुआ? पोस्ट जीएसटी 100 रुपए का कमोडिटी है तो उसका भाव 100 रुपए ही होगा, बट बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। ये दो जो टैक्सेस है सीवीडी और एसएडी, इसके जगह पे अब लगेगा आईजीएसटी। देयर विल बी नो मोर सीवीडी एंड एसएडी, नाउ अ न्यू टैक्स विल बी लेविड विच इज आईजीएसटी। बिकॉज आपका जो एक्साइज ड्यूटी है और जो आपका वैट है वो भी किस में सबस्यूम हो गया? जीएसटी में। तो वैसे ही आपका जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है उसको भी किस में सबस्यूम कर दिया है? आईजीएसटी में। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो बेसिक कस्टम ड्यूटी विल स्टिल बी लेविड, ओनली thing which has been subsumed is what? Your CVD and SED. This will not be levied. I hope my point is very much clear. So आप जब भी subsume की बात करोगे आप कस्टम ड्यूटी subsume नहीं हुआ है, क्या subsume हुआ है? CVD and SED subsume हुआ है।
चलिए सर आगे बात करते हैं दूसरी चीजों की। फिर आते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स पे, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो पहले जब भी आप गुड्स बेचते थे बिटवीन टू स्टेट्स तो क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सेम स्टेट में बिकता था तो क्या लगता था, वैट। सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज इवन दो कलेक्टेड बाय द सेंटर बट वाज अ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। तो कलेक्ट कौन कर रहा था, सेंटर। तो इसलिए अब सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज नाउ व्हाट विल बी कलेक्टेड इज GST। तो इसको भी उन्होंने सब्स्यूम कर लिया है। फिर सर्विस टैक्स हैज बीन सब्स्यूम्ड, सर्च चार्जेस एंड सेसेस। सर्च चार्ज और सेसेस का क्या मतलब है, तो बिफोर GST हमारे पास कुछ सेसेस लगते थे, जैसे सर्विस टैक्स का रेट था 14%, उसके अलावा देवर टू मोर सेसेस, वन वाज योर स्वच्छ भारत सेस एंड KKC। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्री GST क्या होता था और वो उसमें कौन कौन से टैक्सेस है जो अब GST के आने के बाद सब्स्यूम हो चुके हैं। सो 0.5% CBC लगता था, SBC लगता था एंड KKC लगता था 0.5%, ऐसे करके टोटल रेट ऑफ सर्विस टैक्स वॉज 15%। तो अब स्वच्छ भारत सेस, KKC वॉज कृषि कल्याण सेस। अब ये सेसेस का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स में भी आप लोग पढ़ोगे कि apart from your income tax there is cesses such as your secondary and higher education cess. So cesses are nothing but basically tax or an amount which is collected from the assessee for a specific purpose. जैसे अब मैंने टैक्स कलेक्ट किया सर्विस टैक्स, तो ये सर्विस टैक्स मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। ये किस में जाएगा, ये जाएगा इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का एक फंड है जिसमें पैसा जाता है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसमें से फिर ये अलग अलग चीजों के लिए यूज होगा। मतलब डिफेंस के लिए पैसा देना है तो वहां से ही अलॉट हो सकता है, फिर मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना है, मेरे को पब्लिक सैनिटेशन के लिए करना है, पब्लिक हाइजीन के लिए कुछ करना है, तो मल्टीपल चीजों के लिए पैसा वहां से अलॉट हो सकता है। जैसे आप बजट देखते हो तो बजट में देर आर अलॉटमेंट्स विच आर मेड, तो वो जो होता है वो इसमें से होता है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है कि ये किसके लिए पैसा यूज करेगी गवर्नमेंट। बट जो SBC और KKC होता है, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, ये जो सेसेस है इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि ये किसके लिए यूज होंगे। तो स्वच्छ भारत सेस विल बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर स्वच्छ भारत अभियान। कृषि कल्याण सेस विल बी यूज्ड ओनली फॉर द betterment of agriculture or something which is the idea behind implementing this. आपका जो इनकम टैक्स में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है, दैट विल बी यूज्ड टू गिव बेसिक एजुकेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो और लिटरेसी रेट इंडिया में बढ़े। सो देर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर विच दीज सेसेस विल बी यूज्ड। GST में देयर वाज वन सेस विच वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस वाज KFC। KFC सर, KFC मतलब वो खाने वाला KFC? तो आंसर इज नहीं। KFC का मतलब है केरला फ्लड सेस बोल के एक सेस लाया गया था जब केरला में फ्लड हो गए थे। तो इट वाज अ सेस विच वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन GST एंड द बेसिक इंटेंशन वाज टू फंड द गवर्नमेंट फॉर रिलीफिंग एंड डूइंग द बेसिक एक्सपेंडिचर्स बिकॉज ऑफ द डिजास्टर्स कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। तो इसके लिए KFC लाया गया था। दिस इज नॉट आर मैटर ऑफ कंसर्न, मेरे को बस आपको रीजन बताना था कि इस सेस का मतलब क्या होता है बेसिकली। सो जो भी सर्च चार्ज और सेसेस होते थे, जैसे SBC लगता था, आपका KKC लगता था, ऑल दीज सेसेस विच वर देयर आर नाउ बीन सबस्यूम्ड एंड देयर इज नो अदर सेस विच इज कलेक्टेड इन GST। देयर इज ओनली वन टैक्स विच विल बी देयर, दैट इज योर GST। आई होप सेंट्रल साइड पे जितने भी टैक्सेस थे जो सबस्यूम हुए वो आपको समझ में आए। Now talking about the state side taxes which are subsumed. So state side पे कौन कौन से taxes subsume हुए? तो सबसे पहला VAT. VAT is nothing but your value added tax which is to be paid when the goods are sold within the same state. उसके बाद there is entertainment tax. जब भी आप movies देखने जाते हो तो entertainment tax पे करते हो, वो जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं entertainment tax. In India there are two levels at which entertainment tax are levied. One is your state level and the other one is your municipal level. मतलब आपकी जो local authority है, जैसे हमारे पुणे में पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज दी लोकल अथॉरिटी। तो ये दो लोग क्या करते हैं,
एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करता है. सो द टैक्स विच हैज बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी इज द स्टेट लेवल वाला जो एंटरटेनमेंट टैक्स था. वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करती थी वो आज के डेट पे भी सबस्यूम नहीं हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर. तो वेन एवर यू गो फॉर एन मूवी यू विल सी दैट शो का प्राइस है, उसके नीचे जीएसटी है एंड एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा हुआ होता है. सो एंटरटेनमेंट टैक्स जो सबस्यूम हुआ है वो कौन सा है? स्टेट लेवल वाला. जो कॉरपोरेशन लेवी करती है दैट इज स्टिल नॉट सबस्यूम. ओके सर. उसके बाद आपका लग्जरी टैक्स. लग्जरी टैक्स इज बेसिकली टैक्स विच इज was charged by the hotels and all. उसको सबस्यूम कर लिया गया है. नाउ देर इज नो मोर लग्जरी टैक्स विच इज टू बी पेड. अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर का कोई आप अगर रूम अकोमोडेशन लेते थे तो आपको लग्जरी टैक्स पे करना पड़ता था. सो दिस इज सबस्यूम्ड. एंटरटेनमेंट टैक्स इज सबस्यूम्ड. वैट टैक्स ऑन लॉटरी. लॉटरी पे जो टैक्स लगता है उसको सबस्यूम कर लिया गया है. नाउ जीएसटी इज बीइंग लेवीड. एंड देन द लास्ट वन एंट्री टैक्स. जब भी गुड्स किसी भी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहां पे एक टैक्स पे करना पड़ता था. दैट इज योर एंट्री टैक्स. इवन इन दी म्यूनिसिपल बाउंड्रीज जब कोई गुड्स आते थे, फॉर एग्जाम्पल इफ मुंबई से गुड्स पुणे आ रहे थे तो जैसे ही पुणे की बाउंड्री वो क्रॉस करते थे तो दे हैड टू पे एंट्री टैक्स. दिस एंट्री टैक्स और एलबीटी विच वाज चार्ज लोकल बॉडी टैक्स जिसको बोलते थे हैज ऑल्सो बीन सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी. So these are the taxes which have been subsumed broadly into GST. चलिए, तो दो लेवल पे, एक है सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल, जो टैक्सेस सबस्यूम हो चुके हैं टू ब्रिंग इन द न्यू टैक्स विच इज योर जीएसटी. सर ऐसे भी कोई टैक्सेस है जो जीएसटी के आने के बाद भी आज भी प्रेवलेंट है मार्केट में, जो आज के तारीख पे भी सबस्यूम नहीं हुए हैं जीएसटी में? सो यस, देयर आर फ्यू टैक्सेस विच आर नॉट येट सबस्यूम. सबसे पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो मैंने आपको दिखाया कि आज के डेट पे भी कस्टम ड्यूटी लगती है, बट काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एसईडी जो थी वो आज भी नहीं लगती. आज नहीं लगती, उसकी जगह पे जीएसटी लगेगा. फिर स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी इज बेसिकली व्हेनेवर यू बाय और सेल अ प्रॉपर्टी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है विच रेंजेस समवेयर अराउंड 7 to 8%. तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है जब आप गुड्स घर बेचते हो या खरीदते हो वो आज के डेट पे भी पे करनी पड़ती है एंड इट गोज टू दी लोकल अथॉरिटी. उसके बाद है आरटीओ टैक्स. जब भी आप कभी गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी खरीदने पे आपको आरटीओ टैक्स पे करना पड़ता है. सो दिस इज स्टिल प्रिवलेंट, इट इज नॉट बीन सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी. एक्साइज ऑन लिकर. एक्साइज ऑन लिकर. सर आपने तो हमको बताया कि एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम हो चुका है इनटू जीएसटी. फिर सर ये एक्साइज ऑन लिकर क्या है? चलिए, तो अब हम समझते हैं. एक्साइज में भी ना दो टाइप के एक्साइज ड्यूटीज है. एक है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा वाला है स्टेट एक्साइज ड्यूटी. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो था वो पूरा का पूरा सबस्यूम हो चुका है एंड देयर इज नो एक्साइज ड्यूटी विच इज बीइंग लेविड. बट स्टेट एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड ऑन वन कमोडिटी. स्टेट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी सिर्फ एक ही चीज पे, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो अल्कोहलिक लिकर जो दारू मिलता था उसके ऊपर जो रेवेन्यू था वो कौन कलेक्ट करता था? दैट वाज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एंड नॉट ऑफ द सेंटर. तो अब जब जीएसटी लाया गया तो सारे स्टेट्स के कंसेंसस लिए गए कि आप लोग जीएसटी लाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो. द रीजन बीइंग बिकॉज स्टेट्स विल हैव टू गिव अवे देयर रेवेन्यू. बराबर है कि नहीं? तो स्टेट का कंसेंसस होना भी जरूरी है. अगर नहीं होगा तो जीएसटी लाना विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जो लोकसभा वगैरह होती है वहां पे रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है. अगर वो लोग मानेंगे ही नहीं तो कोई भी लॉ लाना इज नॉट पॉसिबल. सो एक्साइज में देयर वर टू एक्साइज ड्यूटीज. वन वाज योर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड द अदर वन वाज योर स्टेट एक्साइज ड्यूटी. तो जो सेंट्रल वाला था वो सबस्यूम हो गया. स्टेट वाले में एक ही चीज पे लगता था स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दैट वाज योर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दैट वाज नॉट सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी. द रीजन बीइंग जीएसटी वाज अ न्यू टैक्स. इससे कलेक्शन कितना होगा was not known to the states and states were in no mood to give away their major revenue. So major revenue of states is from alcohol.
अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये लॉकडाउन में भी व्हाट दे हैव डन इज दे हैड स्टार्टेड व्हाट, सबसे पहली चीज जो उन्होंने चालू की थी वो क्या थी? हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या थी। तो द रीजन बीइंग बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, सो सारे स्टेट्स ने इसको चालू कर दिया था ताकि उनको वो रेवेन्यू तो आता रहे। सो नाउ एक्साइज ड्यूटी ऑफ दिस हैज नॉट बीन subsumed because the only reason being government were not in mood of giving away this revenue because it is a major part of their revenue. Then moving to tax on sale and consumption of electricity. तो अगर आप लोग बिल देखते हो आपका, तो उसमें एक वीज कर या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बोल के अमाउंट होता है. दिस टैक्स हैज नॉट बीन सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी. And then entertainment taxes which are levied by local bodies has not been subsumed. These are the taxes which are not subsumed, even though these are indirect taxes but have not been subsumed into GST. I hope my point is very much clear कि कौन कौन से taxes ऐसे हैं जो subsume हुए हैं और कौन कौन से taxes subsume नहीं हुए. चलिए एक बार के लिए हम जितना भी हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा टैक्स क्या होता है. टैक्स इज नथिंग बट इज एन अमाउंट और इज एन चार्ज विच इज लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर. क्यों लेवी करते हैं? ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड कर सके. फिर हमने पढ़ा कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन द मार्केट. वन इज योर डायरेक्ट टैक्सेस, द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होता है जो बंदा कमा रहा है उसी को पे करना है. इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली कंज्यूमर बेयर करता है एंड पे कौन करता है? शॉपकीपर पे करता है. एक को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, दूसरे को रेग्रेसिव बोलते हैं. और एक का कंट्रोलिंग बॉडी है सीबीडीटी, दूसरे का है सीबीआईसी. वेरी गुड. उसके बाद हमने पढ़ा कि जेनेसिस ऑफ जीएसटी क्या था. जेनेसिस में 1954 में फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी. उसके बाद 160th कंट्री इज इंडिया हु हैज इंप्लीमेंटेड जीएसटी. जीएसटी लाने से पहले हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा. वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था. उसके बाद जीएसटी को लाने के लिए वी हैड टू पास एक्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, एंड देन 1 जुलाई ऑनवर्ड जीएसटी को ला दिया गया था इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वन, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी आ गया था फ्रॉम 8 जुलाई 2017. फिर हमने देखा कि टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम हुए. तो सेंट्रल लेवल पे कुछ टैक्सेस सब्स्यूम हुए, कुछ स्टेट लेवल पे सब्स्यूम हुए. तो वो टैक्सेस कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस सब्स्यूम हुए वो है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं, बट योर काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड योर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम. उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, माइंड यू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वाला नहीं. फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, आपका सर्विस टैक्स एंड आपके सरचार्ज एंड सेसेस. उसके बाद आते हैं हम स्टेट लेवल पे. तो स्टेट लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी या एंट्री टैक्सेस जिसको आप बोलते हो. उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स एंड टैक्स ऑन लॉटरी. फिर टैक्सेस विच आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, तो हमारे पास है कस्टम ड्यूटी. उसके बाद टैक्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ लोकल बॉडीज, दैट इज योर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली का जो रहेगा दिल्ली कॉर्पोरेशन जो होगा उसका, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोग जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं ये सबस्यूम नहीं हुआ. उसके बाद आपका आरटीओ टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ऑल दीज टैक्सेस हैव नॉट बीन सबस्यूम्ड इवन दो दीज आर व्हाट? दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस बट येट टू बी सबस्यूम्ड. चलिए, येट टू बी सबस्यूम्ड मतलब सबस्यूम नहीं हुआ है भाई. चलिए, उसके बाद हम आते हैं डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. क्या प्रॉब्लम थे जिसके वजह से हमको जीएसटी लाना पड़ा, उसकी बात करेंगे. चलिए सर, तो बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमको जीएसटी लाना पड़ा. सो सबसे पहली वाली बात है कैस्केडिंग इफेक्ट. टैक्सेस का कैस्केडिंग होना, इसका मतलब क्या है समझते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको गुड्स का एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि जब भी कोई बंदा गुड्स बेचता है तो क्या क्या लगता है? मैन्युफैक्चर करने पे लगता है एक्साइज ड्यूटी एंड बेचने पे लगता है इधर वैट और सीएसटी. अगर सेम स्टेट में होगा
तो सेम स्टेट में होगा तो वैट लग जाएगा, और अगर दूसरे स्टेट में तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लग जाएगा। तो अब समझते हैं होता क्या था। तो अब हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है जिसने गुड्स बनाए 100 रुपए में, उसने एक्साइज ड्यूटी 10% लगाई, तो कितना आ गया 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी, एंड फिर इसके ऊपर लगाता था वो वैट। तो वैट कितना लगेगा, तो वैट अब किस पे लगे, 100 पे लगे या 110 पे। सो वैट वॉज लेवीड ऑन द बेसिक अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्लस द एक्साइज ड्यूटी। तो 110 रुपए पे 10% अगर वैट का रेट पकड़े तो दिस वॉज योर वैट, एंड टोटल प्राइस जिस पे वो गुड्स बिकते थे वो कितना हो जाता था 121 रुपए। तो अगर आपने देखा होगा तो कैस्केडिंग हो रहा है, कैस्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी इवन दो इट इज अ टैक्स, उसके ऊपर भी वैट लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग। कैस्केडिंग इज नथिंग बट टैक्स पे टैक्स लगने को हम बोलते हैं कैस्केडिंग। चलिए सर, अब आगे क्या होता था, ये मैन्युफैक्चरर जब बेचता था तो ये हो जाता। जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गुड्स जाते हैं तो गुड्स की प्राइस क्या होती, गुड्स की प्राइस होती 111 रुपए। सर गुड्स तो उसने 121 में लिया, चलो मैं बताता हूं आपको प्राइस कितनी होती, सॉरी 110 रुपया प्राइस होती, गुड्स की प्राइस होती है 110 रुपए। अब एक्साइज ड्यूटी उसको पे करना नहीं है बिकॉज इट इज ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बेचने पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता, वैट जरूर लगेगा, दैट विल बी ऑन द प्राइस एट विच ही इज सेलिंग। तो अब अगर वो 150 रुपए में बेच रहा है तो इसके ऊपर 10% लगेगा विच इज 15 रुपीज। अब समझो मैंने 121 में कोई माल लाया तो मैं 121 में थोड़ी बेचूंगा, मैं ज्यादा में बेचूंगा, तो मैं समझो उसको 150 में बेच रहा हूँ, तो 150 का 10% विल बी 15 रुपीज। अब मेरे को जब टैक्स भरना है तो मैं अब 15 मुझे पे करना है, बट मैंने ऑलरेडी 11 पे कर रखा है वाइल परचेसिंग इट। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी पेइंग ओनली एंड ओनली 4 रुपीज। कितना पे करूंगा, और 4 रुपया पे करूंगा। दैट इज वैल्यू एडेड, मतलब जितना आपने वैल्यू ऐड किया है उतने के ऊपर ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं वैल्यू ऐड हमने कितना किया था, हमने 100 रुपए में चीज खरीदी, राइट, 100 और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, मतलब हमारे को टोटल कॉस्ट कितना हो गया 110 रुपया। मैंने बेची कितने में, 150 में। तो टोटल मैंने कितना वैल्यू ऐड किया, 150 माइनस 110 दैट इज 40 रुपीज। 40 रुपीज वॉज दी वैल्यू एडिशन, उसके ऊपर टैक्स 10% से, तो कितना आएगा 4 रुपीज, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सो before GST the problem was that whatever excise duty you were paying was becoming the cost because आगे वाले स्टेज पे उसको उसका क्रेडिट मिलता नहीं था। सामने वाला अगर उसका क्रेडिट, जैसे अभी वैट का क्रेडिट आगे वाला ले पा रहा है, 15 रुपए वैट पे करने आ रहा है तो 11 रुपए जो आगे पे किया था उसने उसका वो माइनस कर दे रहा है, जो उसने आगे टैक्स पे कर रखा है उसको वो माइनस कर दे रहा है, और नेट जितना उसने वैल्यू ऐड किया उसका ही टैक्स भर रहा है। बट एक्साइज ड्यूटी के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी का उसको क्रेडिट मिलता नहीं था और वो क्या बन जाता था, उसका कॉस्ट बन जाता था, इसलिए कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। डबल टैक्सेशन एज गुड्स एंड सर्विसेज, ये अलग पॉइंट इसलिए है कि रेस्टोरेंट के केस में जैसे मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बोलती थी कि ये सर्विस है, स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा क्या बोलेगी कि ये गुड्स है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था एंड देयर वाज डबल टैक्सेशन व्हिच वाज बीइंग पेड। उसके बाद नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एक्साइज ड्यूटी पे जो आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आगे वाले स्टेज में डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता था, आगे अगर कोई होलसेलर है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसे करके जो आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट मिलता नहीं था। इसको बोलते हैं नो सेनवैट। सेनवैट इज नथिंग बट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के आगे आप उसका क्रेडिट ले नहीं सकते थे। फिर सेवरल स्टेट लेवीज, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवीज होते थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, उनके रेट्स अलग, उसके वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे।
फिर नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, मतलब उनका कोई इंटीग्रेशन ही नहीं, वैट एक अलग रेट पे लगता था, सर्विस टैक्स अलग रेट पे लगता था, उनका जो वैल्यू था जिस पे वैट लगेगा वो भी अलग, सर्विस टैक्स कितने पे लगेगा वो भी अलग, बिकॉज दीज बोथ वर चार्ज बाय डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इसलिए है बिकॉज अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेट में अलग अलग रेट्स है, अलग अलग लॉज है, अलग अलग फॉर्म है फॉर फाइलिंग रिटर्न, अलग अलग ऑडिट के प्रोसीजर्स है, तो मुझे वो स्टेट में वहां पे लोकल सीए अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अगर किसी एंटिटी के हर एक स्टेट में ऑपरेशंस थे तो उसको हर एक स्टेट में अलग अलग सीए अपॉइंट करना पड़ता था, बिकॉज वहां के लॉज अलग, वहां के रेट्स अलग एंड वहां के प्रोसीजर्स अलग। तो इसलिए द कंप्लायंस कॉस्ट, हमको कंप्लायंस करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज द कंप्लायंस वाज डिफिकल्ट, it was causing a cost for the businesses. So there was high cost of compliance which was involved. So these are the deficiencies which were there in the earlier regime. Existing मतलब जीएसटी से पहले वाला जो टैक्स सिस्टम था, वैट सर्विस टैक्स वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो कैस्केडिंग होता था, टैक्स डबल टैक्स हो जाता था एज गुड्स एज सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज के बाद जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे किया था उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। उसके बाद आपने जो भी कंप्लायंसेस है उसके वजह से आपको हाई कॉस्ट पे करना पड़ता था, सेवरल स्टेट के लेवीज थे, ऑल दीज वर डेफिशिएंसीज ऑफ द अर्लियर टैक्स रीजन। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद या जीएसटी में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसके वजह से जीएसटी स्टैंड्स आउट। सो जीएसटी इज नथिंग बट अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहले तो हम समझते हैं सप्लाई का क्या मतलब है, सप्लाई है क्या। तो सप्लाई इज नथिंग बट एन टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई क्या है, एक टैक्सेबल इवेंट है। सर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको आनी चाहिए। समझते हैं टैक्सेबल इवेंट होता क्या है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है दैट इवेंट विच विल ट्रिगर द टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसके होने के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या क्या टैक्सेस है, सर्विस टैक्स था, हमारे पास वैट था, हमारे पास एक्साइज ड्यूटी था, हमारे पास कस्टम ड्यूटी है, ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। अब टैक्स लगाने के लिए देयर शुड बी एन इवेंट जिसके वजह से टैक्स का इम्प्लीकेशन आए। तो कस्टम ड्यूटी का इम्प्लीकेशन कब आता है, जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होते हैं इनटू इंडिया। सो इंपोर्टिंग एनीथिंग इनटू इंडिया इज एन टैक्सेबल इवेंट विच विल ट्रिगर द टैक्सेबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम मैं कब लगा सकता हूं, मैं तभी लगा सकता हूं अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो, तो इंपोर्टिंग इनटू इंडिया विल बिकम एन टैक्सेबल इवेंट। वैसे ही एक्साइज ड्यूटी कब लगाया जा सकता है, जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाए। तो जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए तो क्या आ जाएगा, तब टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सो मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट द टैक्सेबल इवेंट। वैट कब आता था, वैट आता था ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब भी आप गुड्स बेच देते थे तो सेल ऑफ गुड्स वाज द टैक्सेबल इवेंट व्हिच वुड गिव राइज टू पेइंग ऑफ वैट। एंड देन सर्विस टैक्स वाज टू बी पेड ऑन प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। जब भी आपने किसी को सर्विस दे दी तो आपको क्या देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। तो अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग क्या होंगे, टैक्सेबल इवेंट होंगे। वैसे ही हमारा जो जीएसटी है उसका भी एक टैक्सेबल इवेंट है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं, सप्लाई। जैसे ही आप कोई गुड्स सर्विस या दोनों सप्लाई करोगे तो जीएसटी की टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट अ टैक्सेबल इवेंट इज। टैक्सेबल इवेंट इज नथिंग बट अ पॉइंट विच विल ट्रिगर द टैक्सेबिलिटी। चलिए सर, सो सप्लाई को हमने अभी के लिए डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज वी हैव एन एंटायर चैप्टर विच विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट सप्लाई, इसलिए मैंने अभी सप्लाई की बात ज्यादा डिटेल में गहराई में की नहीं है। चलिए,
सो टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर की फीचर क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो जब तक आप उस गुड्स को कंज्यूम या सर्विस को कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपको क्या मिलते रहेगा, जैसे जैसे आप बेचते रहोगे अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट कब होगा, ऑन दी कंजम्पशन। सर ये समझ में नहीं आता, चलिए समझते हैं। देखो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स बेचता है, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर देगा आगे होलसेलर को, एंड उसके बाद फाइनली जाएगा रिटेलर को। चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डायरेक्ट रिटेलर ही ले लेते हैं, एंड देन लेते हैं कंज्यूमर। तो ये हमारा सप्लाई चेन है। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। तो अब होता क्या है, देखो जैसे ही आपने कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर किए, अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। अब क्या है, 100 रुपये में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, जीएसटी लगा समझो 100 रुपया, 100 रुपये पे जीएसटी लगा 10%, तो कितना हो गया 10 रुपया। तो टोटल गुड्स कितने में बिके, 110 रुपये में। ये चले गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स आए तो वो 110 में तो बेचेगा नहीं, तो समझो वो बेचता है 150 में। 150 के ऊपर 10% जीएसटी मतलब 15 रुपए, तो कितने में बिका 165। अब ये जब आगे टैक्स पे करेगा तो ये कितना टैक्स पे करता है, देखिए सुनना, ये टैक्स कितना पे करता है, 15 रुपए का टैक्स पे करने वाला है। इसमें ऑलरेडी उसने जब खरीदा था तो 10 रुपए उसने मैन्युफैक्चर को दे दिया था, तो उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा फ्रॉम हिज टैक्स लायबिलिटी, एंड ही विल बी पेइंग टैक्स ओनली ऑन दी, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो आपका 15 है इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब नेट में जो टैक्स पे करूंगा वो कितना आएगा, 5 रुपए, राइट। सो नेट टैक्स पेएबल इज 5 रुपीज। दिस इज नथिंग बट दी टैक्स विच इज टू बी पेड ऑन दी वैल्यू एडिशन। मैंने वैल्यू कितना ऐड किया, 100 रुपए में माल लाया था, 100 रुपए का माल मैं बेच रहा हूं कितने में, 150 में, तो 50 रुपए में वैल्यू ऐड कर रहा हूं। तो ये जो 50 रुपए है उसका ही टैक्स मुझे लगना चाहिए। अब अगर आप ये देखोगे, गवर्नमेंट को फर्स्ट स्टेज पे कितना टैक्स मिला था, 10 रुपया। उसके बाद सेकंड स्टेज पे गवर्नमेंट को और 5 रुपया मिल गया, विच मेड दी टोटल टू 15 रुपीज। बट ये फिर भी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बुक नहीं किया है अभी तक। क्यों नहीं किया, तो देखना। अब रिटेलर के पास गुड्स गए तो रिटेलर ने इसको बेचा कितने में, 200 में। 200 में बेचेगा तो 200 के ऊपर जीएसटी आ गया 10%, तो टोटल कितना हो गया 220। अब इसके केस में आउटपुट टैक्स कितना है, 20 रुपए। ऑलरेडी इसने जब खरीदा तो कितना टैक्स पे कर रखा है, 15 पे कर रखा है ना यहाँ पे अर्लियर स्टेज पे, तो इसका इनपुट टैक्स कितना हो गया 15, तो कितना आ गया 5 रुपया विल बी दी एडिशन। मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा तो ये प्राइस पे बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने जब आगे रिटेलर को बेचा तो 150 में बेचा, एंड रिटेलर ने आगे जब कंज्यूमर को बेचा तो ही सोल्ड इट फॉर 200। सो अब अगर आप देखो तो चेन में जैसे जैसे गुड्स बिकते गए वैसे वैसे आगे वाले स्टेज वाले ने क्या किया, उस चीज का क्रेडिट लेते गया, जो जो टैक्स उसने पे कर रखा था उसका उसको क्रेडिट मिलते गया। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू अल्टीमेटली जब कंज्यूमर गुड्स खरीदता है ना, जब कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा तब ही उनको वो टैक्स का पैसा रियलाइज होगा, क्योंकि इसके आगे वो किसी को गुड्स बेचेगा नहीं, और गुड्स बेचेगा नहीं तो क्रेडिट लेगा क्या, तो आंसर इज नो। तो ये जो 20 रुपए का टैक्स जो कलेक्ट हुआ will finally be the tax which is paid by the consumer, and this will be the burden on that consumer. Is this point clear? क्योंकि इससे पहले वाला स्टेज जितने भी थे वहां पे क्या हो रहा था, सबको उसका क्रेडिट मिल जा रहा था। चलिए सर, सो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी हमने समझ लिया कि जितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, यहाँ पे कितना 50 रुपया ऐड किया तो उसके लिए 5 रुपया पे करना पड़ा, यहाँ पे भी 50 रुपया एडिशन हुआ तो उसके ऊपर 5। सो एवरी स्टेज द वैल्यू एडिशन विच यू आर मेकिंग ओनली दैट इज बीइंग टैक्स्ड। फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका क्या मतलब है समझते हैं। चलिए, तो एक बंदा है कहां पे, मुंबई में, ठीक है, वो गुड्स बेचता है टू सूरत।
ठीक है। मुंबई वाला गुड्स जब बेचेगा सूरत को, तो इस केस में क्या लगेगा? जीएसटी तो लगेगा, बराबर है, 100 रुपए का गुड्स है। अब कौन सी जीएसटी लगे, सीजीएसटी के आईजीएसटी? क्या तो लगेगा आईजीएसटी। 10 रुपए समझो जीएसटी लगता है, तो टोटल प्राइस हो गया 110 रुपया। अब ये जो जीएसटी में 10 रुपए कलेक्ट किए गए, इसमें से एक पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा एक, और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट का। सो ये जो 10 रुपए आया है, इसका होगा अपोर्शनमेंट। अ पार्ट विल गो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी सर्टेन अमाउंट विल गो टू दी स्टेट गवर्नमेंट। क्या पोर्शन होगा वो हम आगे देख लेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि देयर विल बी अ स्प्लिट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल बी दी स्प्लिट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट समझो, अपन समझते हैं 50-50% का स्प्लिट होता है, तो 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, यहां तक तो क्लियर है। बचा हुआ 5 रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, ये भी समझ में आया। बट अब प्रॉब्लम ये है, कौन सा वाला स्टेट, महाराष्ट्र रखे के गुजरात रखे? प्रॉब्लम क्या है, कौन सा स्टेट ये रेवेन्यू को रखेगा, वेदर महाराष्ट्र स्टेट विल कीप इट और द गुजरात स्टेट। सो in the very start of the lecture I had told you all that GST is what? GST is a destination based tax. Destination based tax का मतलब होता है जो डेस्टिनेशन, जहां पे गुड्स कंज्यूम होंगे, जहां पे गुड्स डेस्टिन्ड है टू बी कंज्यूम, उस स्टेट का वो रेवेन्यू हो जाए। तो हमने गुड्स कहाँ बेचे? सूरत में। तो गुड्स एक्चुअली डेस्टिनेशन क्या है उनका? तो डेस्टिनेशन इज गुजरात एंड the revenue will be going to the Gujarat state government. I hope this point is clear. So destination based tax क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ गया। उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जो भी टैक्स आपने पहले पे किया है वो सारे टैक्सेस का आपको क्या मिलते रहेगा? क्रेडिट मिलते रहेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। जो आपने पे किया था इनपुट पे, वो सारा आपको क्या मिलते जा रहा है? आपको उसका क्रेडिट आगे के स्टेज पे मिलते जा रहा है। सर पहले नहीं होता था क्या? पहले सीमलेस फ्लो नहीं होता था बिकॉज जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते थे, बट जब आप वैट में पेमेंट करते थे ऑन सेलिंग इट, यू आर नॉट गेटिंग दैट क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच यू हैड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वहां पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं होता था। फिर इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट के जो वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेज है, गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता है। जैसे वो जो बिजनेसेस करते हैं पीएसयू में जो उनका इन्वेस्टमेंट है तो वहां से पैसा आता है। फिर डायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है। ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहां से पैसा वो लाते हैं। सो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज गवर्नमेंट का ये मानना है कि विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी मोर एंड मोर पीपल विल बी इंक्लाइन टूवर्ड गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड टैक्स की चोरी होना कम हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर टैक्स बेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। द रीजन बीइंग कि देखो पहले जीएसटी से पहले क्या होता था? देयर वर मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस के वजह से प्रॉब्लम होती थी कि अब अगर कोई बंदा है हु इज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, ही विल हैव टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन दो स्टेट्स। वहाँ के टैक्स लॉज अलग, वहाँ के टैक्स रेट्स अलग, इसके वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे एंड फॉर एन इंडिविजुअल टू कोप अप विद दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज पीपल वर टेंडिंग टू indulge in malpractices without getting themselves registered, they were supplying goods clandestinely. So ये जो प्रैक्टिस थी ये अब अवॉइड हो जाएगी बिकॉज किसी को भी चोरी करना पसंद नहीं है, बट लॉज ही इतने डिफिकल्ट होते हैं टू कंप्लाई, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू दैट। सो इन दैट केस गवर्नमेंट इज ऑफ एन व्यू कि जैसे जैसे हमने जीएसटी एक ऐसा टैक्स ला दिया है जो सिंपल है, इजी है टू फॉलो and it is same for the entire India, so the compliance will become easier and more people will be getting themselves registered। और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में रजिस्ट्रेशन होंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। चलिए सर, लास्ट पॉइंट जो है दैट इज
प्रमोट सोशल वेलफेयर। सो टैक्स के वजह से सोशल वेलफेयर कैसे हो जाएगा, इसके लिए हम आगे एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं ये पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब एक आगे एक पॉइंट आएगा तब मैं इसको कवर कर लूँगा। चलिए सर, सो आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर कि फीचर्स क्या क्या है। तो एक बार हम समझते हैं फीचर्स क्या क्या है। तो टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उसके बाद कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, वैल्यू एडिशन जितना होगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, वाइडर टैक्स बेस हो जाएगा, कंप्लायंस विल बिकम इजियर एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। दीज आर दी फीचर्स ऑफ जीएसटी। अब आपको सिर्फ फीचर्स जब आप लिखोगे तो आपको ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करना है। समझ में आया? जैसे मैंने आपको सप्लाई से रिलेटेड बताया कि इट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है वो सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज ओनली एन सब हेडिंग विच इज बीन गिवन एंड इसको आपको और एलैबोरेट करना पड़ेगा। एलैबोरेटिंग इज वेरी सिंपल एंड जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर तो आई टेक इट कि आपको उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। चलिए सर, नाउ की फीचर्स आर क्लियर। जेनेसिस हमने ऑलरेडी कर लिया है, सबस्यूम कौन कौन से हुए वो भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। क्या बात करेंगे? फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में हम ये पढ़ेंगे कि जीएसटी को लाने के लिए हमको कौन कौन सी एक्ट लानी पड़ी। चलिए सर, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर है, तो मैं ये सारा मिटा दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। तो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी का मतलब है बेसिकली जीएसटी में कौन कौन सी एक्ट हैं। तो देखो, हमारे पास जीएसटी में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। यहां तक क्लैरिटी है? दो टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे, एक होगा इंट्रा स्टेट, दूसरा होगा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके केस में क्या लगता है? उसके केस में लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंट्रा के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी इज दी सेंट्रल पोर्शन एंड एसजीएसटी इज दी स्टेट पोर्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो उनको क्या बनानी पड़ेगी? एक्ट बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कौन सी एक्ट बनाई है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2007। ये है एक्ट जिसके तहत सीजीएसटी कलेक्ट होता है। ऐसे ही किसी का मन हुआ और उनको टैक्स कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो ऐसा नहीं हो सकता। दे हैव टू मेक अ लॉ। बिना लॉ के कोई भी टैक्स इंडिया में कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट बनाया। वैसे ही हमारे पास हर एक स्टेट का उनका उनका स्टेट एक्ट है। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र स्टेट का अपना महाराष्ट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। गुजरात स्टेट का गुजरात स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। ऐसे हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट का एक्ट है। चलिए, सो आई होप ये समझ में आया महाराष्ट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। उसके बाद सेंट्रल एक्ट एक ही है, सीजीएसटी एक्ट एक ही है, एसजीएसटी इज मल्टीपल स्टेट, जितने स्टेट उतने उतने उनके अलग अलग एसजीएसटी एक्ट है। चलिए, उसके बाद वी हैव यूटीजीएसटी एक्ट। यूटीजीएसटी इज नथिंग बट, जैसे स्टेट में से सप्लाई हो रहा होगा इंट्रा स्टेट तो उसके केस में क्या लगेगा? सी और एस। वैसे ही अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लग रहा होगा तो क्या लगेगा? सी और यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ये कौन से यूनियन टेरिटरीज है? तो हमारे पास दमन एंड दीव है, ठीक है, फिर हमारे पास लक्षद्वीप है। सो दीज आर यूनियन टेरिटरीज। अगर यहाँ पे कोई सप्लाई होती है तो उस केस में क्या लगेगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो दिस इज द अदर एक्ट विच इज देयर। उसके बाद हमने बात की आईजीएसटी एक्ट की। आईजीएसटी इज नथिंग बट एन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये लगता है अगर कोई सप्लाई हो रही है विद इन टू स्टेट्स, अगर महाराष्ट्र से गुड्स जा रहे हैं गुजरात तो उसके केस में सी और एस नहीं लगेगा, ना ही सी और यूटीजीएसटी लगेगा। तब क्या लग जाएगा? तब लग जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट।
सो दीज आर दी टैक्सेस विच आर लेविड। अब लास्ट एक जो बचता है वो है आपका कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट। इसको कॉम्पेंसेशन सेस भी बोलते हैं, इसको हम जीएसटी में कॉम्पेंसेशन सेस भी बोलते हैं। ये क्या है समझते हैं इसको भी। सो कॉम्पेंसेशन सेस इज नथिंग बट अ सेस विच इज क्रिएटेड टू फंड द लॉसेस विच आर being borne by the states because of the implementation of GST। मतलब समझो महाराष्ट्र स्टेट को बिफोर जीएसटी रेवेन्यू होता था समझो 50,000 करोड़ का, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अब उनका रेवेन्यू ड्रॉप होके हो गया 45,000, ठीक है, समझो 45,000 करोड़ उनका रेवेन्यू हो गया बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 5,000 करोड़। तो ये जो 5,000 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ है इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको कॉम्पनसेशन सेस बोल के एक सेस ला रहे हैं विच विल बी एप्लीकेबल फॉर 5 years फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उसकी काल अवधि कितनी होगी? 5 साल की होगी। तो ये 5 साल तक ये कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाएगा और इससे जो भी स्टेट को लॉसेस हो रहे हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। सर ये फिर कॉम्पनसेशन सेस हर एक गुड्स पे लगेगा क्या? तो आंसर इज नो, इट विल बी लेवीड ओनली एंड ओनली ऑन डीमेरिट और सिन गुड्स। किस पे लगेगा? डीमेरिट एंड सिन गुड्स पे लगेगा। डीमेरिट और सिन गुड्स कौन से हैं? तो टबैको, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, सिगरेट्स, उसके बाद मोटर व्हीकल्स, ये सारे जो गुड्स हैं सिर्फ इतने गुड्स पे ही, कोल, ये सारे जो गुड्स हैं इनको हम डीमेरिट या सिन गुड्स मानते हैं या लग्जरियस गुड्स मानते हैं जिनके ऊपर सिर्फ जीएसटी लगाया। जीएसटी तो लगेगा ही आपका नॉर्मल, उसके अलावा कॉम्पनसेशन सेस भी लगेगा। समझते हैं कैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स बेचे, ठीक है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, तो समझो 10,000 उसका भाव है, तो उसके ऊपर सीजीएसटी लग जाएगा और एसजीएसटी लग जाएगा। समझो 5% है तो 500 सीजीएसटी 500 एसजीएसटी लग जाएगा, 5% ऑफ 10,000। वैसे ही फिर कॉम्पनसेशन सेस भी लगेगा। कॉम्पनसेशन सेस विल बी लेविड ऑन योर 10,000 एंड नॉट ऑन 10,000 प्लस 500 प्लस 500। ये किस पे लगेगा? आपका जो प्राइस है उसी पे लगेगा। सो जिस वैल्यू पे आप जीएसटी लगा रहे हो उसी वैल्यू पे आपको कॉम्पनसेशन सेस भी लगाना। तो कॉम्पनसेशन सेस का जो भी रेट है, समझो कॉम्पनसेशन सेस का रेट है व्हाट, लेट्स अज्यूम 50% रेट है, तो 50% मतलब 5,000 रुपीज कॉम्पनसेशन सेस भी लग गया। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस एट विच द गुड्स विल बी सोल्ड। ये हर चीज पे लगेगा क्या? हर चीज पे नहीं लगेगा, मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, उतनी ही चीजों पे वो लगता है। सर क्या हमको हमारे सिलेबस में कॉम्पनसेशन सेस है? तो आपके सिलेबस में ना ही कॉम्पनसेशन सेस है ना ही आपके सिलेबस में आईजीएसटी। आपके सिलेबस में देर इज ओनली एंड ओनली वन एक्ट विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एंड दैट टू ओनली सेक्शन अप टू 51 से लेके 50 सेक्शन तक ही आपको एप्लीकेबल है। बाकी के हमारे पास टोटल सेक्शन 174 तक हैं, बट वो सारे के सारे सेक्शंस आपको पढ़ने नहीं है। ओनली टिल 50 सेक्शंस इज व्हाट विल बी आस्क्ड फॉर योर एग्जाम पर्पसेस एट इंटरमीडिएट लेवल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बट इन सबका पासिंग रेफरेंस आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बता दी है, ठीक है। चलिए सर, सो यहां तक अगर समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास कितने कितने फ्रेमवर्क्स है, कौन कौन से एक्ट की वजह से जीएसटी लग रहा है? सीजीएसटी एक्ट, एचजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। ये सारे एक्ट है जिसके तहत हमको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। अब मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, प्रमोट सोशल वेलफेयर, उसके ऊपर मैं वापस आ रहा हूं। अब इसको डिस्कस करते हैं कि प्रमोट सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है। प्रमोट सोशल वेलफेयर का मतलब है कि जो भी सिन गुड्स होंगे उसके ऊपर हम एडिशनल टैक्स लगाएंगे। टैक्स रेट विल बी रेंजिंग अप टू 200%। एग्जॉर्बेंट रेट्स हैं, मतलब जितना जीएसटी नहीं है उससे ज्यादा उसके ऊपर क्या लग रहा है? टैक्सेस लग रहे हैं, बट फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो
हम उसके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे ताकि हम उसको डीमोटिवेट कर देंगे कि ये गुड्स आप मत खरीदो। देखो कोई भी चीज़ के ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा लगा रही है, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इज नॉट इन एन इंटेंशन टू प्रमोट इट। तो इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा है प्रमोट सोशल वेलफेयर, क्योंकि जो भी सिन गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है ताकि लोग वो गुड्स खरीदें ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द की फीचर ऑफ जीएसटी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी इंडिया में कैसे लगता है। सो इंडिया में बेसिकली द मॉडल ऑफ जीएसटी विच इज बीन इम्प्लीमेंटेड इज ड्यूअल जीएसटी मॉडल। दिस इज द लास्ट पॉइंट विच विल बी टेकिंग अप टुडे। सो हम जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया है वो कैसा सिस्टम है, ड्यूअल जीएसटी। द रीजन बीइंग हमारे यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट है, वन इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों को रन करने के लिए अलग अलग रेवेन्यू के सोर्सेज लगते हैं, इसलिए हमने दो टाइप के ड्यूअल जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है ड्यूअल जीएसटी का मतलब। तो देखो, एक फॉरेन टेरिटरी है जिसमें से गुड्स महाराष्ट्र में आ रहे हैं, ठीक है। एक फॉरेन टेरिटरी है, उसमें से गुड्स अगर महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में अगर गुड्स आएंगे फ्रॉम अ फॉरेन टेरिटरी, फॉर लेट्स अज्यूम यूएसए से गुड्स, यूके से गुड्स, समझो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो हमको क्या क्या पे करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में अगर गुड्स आएंगे तो हमको बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा हमको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। समझो हमने 10,000 के गुड्स इंपोर्ट किए, तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगा, एंड देन वील बी पेइंग आईजीएसटी ऑल्सो। चलिए इसको समझते हैं। दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंसेस, बिकॉज आप कस्टम्स कहीं पे भी है नहीं, बट आपको समझना चाहिए कि क्या कस्टम्स कैसे लगता है। तो 10,000 रुपये का मैंने कोई गुड्स बाई किया, तो उसके ऊपर सबसे पहले लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। समझो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, तो कितना लग जाए, 11,000 रुपया हो जाएगा आपका कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी। अब इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी विल नॉट बी ऑन 10,000 बट ऑन 11,000, दैट इज एट अमाउंट इंक्लूडिंग योर कस्टम ड्यूटी। इसके ऊपर समझो रेट है 10%, तो so the total price will be 11,000 plus your 1100, that is your GST. So total price जिसमें वो goods import होगा इंडिया में, that is your 12,100. Is this point clear? So जब भी कोई फॉरेन टेरिटरी से गुड्स महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो क्या होगा, क्या लगेगा उसके ऊपर, क्या लगेगा, आईजीएसटी। अगर ये गुड्स जो महाराष्ट्र में आए वो गुड्स महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही बिक गए, तो उसके इसमें क्या लगेगा, अगर गुड्स महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही बिक रहे हैं तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद अगर महाराष्ट्र वाला बंदा अगर उसको आउटसाइड महाराष्ट्र बेचता है, समझो दिल्ली में बेचता है, अगर वो महाराष्ट्र में नहीं बेच के दिल्ली में बेचता है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बन जाएगा, तो इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। सी और एस नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। चलिए अब ये जो दिल्ली वाला बंदा है, अगर ये वाला दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही गुड्स को बेच दे तो उसके केस में लगेगा सी और एस। सर दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसके केस में सी और एस क्यों लग रहा है, दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, वन इज विथ लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर। विथ लेजिस्लेचर का मतलब होता है उनकी खुद की विधानसभा है, एज इन उनका खुद का स्टेट का लेजिस्लेचर है। सो दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर है। हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, कौन कौन सी, तो वन इज योर दिल्ली, द अदर वन इज पौंडीचेरी, एंड द थर्ड वन इज द न्यू इन द लिस्ट, दैट इज योर व्हाट, बोलो भाई क्या है। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये 3 जो आपके यूनियन टेरिटरीज है इनके सेपरेट लेजिस्लेचर है, सॉरी इसका लेजिस्लेचर नहीं है, लद्दाख का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर इज एन यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। सो
Pondicherry, Delhi, Jammu and Kashmir, these are the union territories which have their own legislature. So इस केस में अगर इनके स्टेट, इनके अंदर ये यूनियन टेरिटरीज में ही अगर गुड्स बिक रहे हैं तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST। वहीं पे अगर कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे लक्षद्वीप, तो उसके केस में क्या लगेगा, C प्लस UTGST। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, तो देखिए दिल्ली के दिल्ली में गुड्स बिके तो C और S, एंड S कौन सा, दिल्ली का SGST। वैसे ही दिल्ली से अगर माल लक्षद्वीप जाता है तो उसके केस में क्या लगेगा, बिकॉज इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, IGST लग जाएगा। एंड अगर लक्षद्वीप में ही माल बिका तो उसके केस में क्या लगेगा, C और UTGST, बिकॉज इट इज इन एन यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है। चलिए, फिर अगर फॉरेन टेरिटरी से माल अगर किसी यूनियन टेरिटरी में आता है, जैसे स्टेट में आया था तो आपने क्या लगाया, IGST, वैसे ही अगर किसी यूनियन टेरिटरी में आया तो क्या लगेगा, फिर भी IGST लगेगा, because there is no difference. Difference is only if you are selling within the state or union territory and the union territory where you are selling is without legislature, तो उसके केस में instead of state GST क्या लगता है, union territory GST लगता है। I hope आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या देख लिया, तो हमने देखा कि GST में क्या क्या टाइप के GST है, GST लाने के पीछे रीजन क्या है, GST से पहले कौन कौन से टैक्सेस होते थे जो अब सब्स्यूम हो चुके हैं, एंड आगे सब्स्यूम कौन से टैक्सेस नहीं हुए हैं उसकी भी लिस्ट हमने पढ़ी, एंड कौन कौन से एक्ट है जिसके तहत GST लगाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली what we have discussed so far in GST. So tomorrow we will be discussing about the remaining part and the constitutional background about GST. So with this friends, I wrap up today's session on the basic introduction about GST. I hope आप सबको समझ में आया कि हमने किस बारे में डिस्कशन किया। So friends, thanks a lot. Thanks for your patient hearing. So we meet tomorrow for the remaining